Hello and welcome to all. So, this is the third lecture on the fluid property, and we are going to solve few numerical problems based on the property of the fluids. All right. So, before that, if you have not gone through the theory part, so in the playlist you will find two videos on the property of the fluids. You can visit, though you can watch those videos for theory portion. Okay, so we are starting. So we have a first problem. In this problem we wanted to calculate what is the specific weight, specific mass, specific volume and specific gravity of a liquid having volume of 6 meter cube and the weight 44 kilonewton. So what is given to us? So given वॉल्यूम दिया हुआ है, सो वॉल्यूम इज 6 मीटर क्यूब एंड द वेट, सो वेट ऑफ द फ्लूइड, सो वेट कितना होगा? सो इट विल बी मास इनटू ग्रेविटी, ये कंबाइन करके इट इज गिवन टू 44 किलो न्यूटन. सो 44 किलो न्यूटन कैसे लगे? इट कैन बी रिटन एज 44 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन. Alright, so these two data is given to you, volume and weight. So first हमको calculate करना है in the first part. What we have to calculate? It is the specific weight. So specific weight की definition क्या थी? So specific weight था, definition, through the definition it was the weight of the fluid divided by volume of the fluid. इस तरह से हमने डिफाइन किया था स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम. सो हमको वेट दिया हुआ है, सो वेट ऑलरेडी दिया हुआ है 44 किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया. सो दिस इज योर वेट 44 इंटू 10/3 एंड वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है 6 मीटर क्यूब. So this will be 2 3s and this will be 22. So it will come out 22/3 into 10 power 3 and it will be Newton per meter cube. Or you can further simplify. So it will comes out 3 7s 21, 3 3s into 10 power 3 Newton per meter cube. So this is the first part where we have to find the specific weight. Weight per unit volume, weight दिया हुआ है and divide by volume, you will directly get specific weight. In the second part, specific mass. So specific mass, इसका दूसरा नाम क्या है? Specific mass, or it is your density. That is your density of the fluid. So specific mass, it is mass per unit volume, mass of the fluid divided by volume, mass over volume. So mass के लिए here it is weight दिया हुआ है, so from here we can find out mass. So m will be 44/10 power 3 and divided by g will be 9.81. So this will be your m. और यहाँ पे m की वैल्यू रख दो 44 10/3 and divided by 9.81 and volume is 6. So similar ये weight per unit volume, ये पूरा टर्म क्या है? This is your, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. It was 7.77, ये आया हुआ है. So this is 7.33 10 power 3 and over 9.81. You simplify कर लो इसको, divide कर लो, so use, it will come out 400
so not 400, so it will come out 747.2. And what will be its unit? So unit will be mass है kg में, volume है मीटर क्यूब में, so it will be kg per meter cube. So this will be your second part का ये आंसर है. Specific mass, mass over volume. थर्ड पार्ट में specific volume. So specific volume. So specific volume कैसा है? Volume की it is volume per unit mass. Volume per unit mass. हमने क्या निकाला? Mass over volume. That means it is the reciprocal of the density. It is 1 over rho. 1 over rho. Density हमने निकाल लिया. So 1 divided by 747.2. So take its reciprocal. So it will come out approximately 0.00134, and the unit will be meter cube per kg. Density kg per meter cube and specific volume meter cube per kg. So first part निकाल लिया, specific weight, specific mass, specific volume. Now the specific gravity. So fourth part it is specific gravity. Specific gravity, इस सिंबल में हमने इसको SG. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर. डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड की डेंसिटी को वी कंपेयर विद द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड. और स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या था हमारा? वाटर था. स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या था? वाटर. सो डेंसिटी फ्लूइड की हमने निकाली, कितना है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड? डेंसिटी ये रही हमारी 747.2 एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर. सो डेंसिटी ऑफ द वाटर रिमेंबर करने के लिए बोला था, इट इज 1000. सो इट इज 0.747 एंड इट इज यूनिटलेस. सो दिस इज द फोर्थ पार्ट का आंसर है. सो आंसर आ चुके हैं. सो फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट किया स्पेसिफिक वेट पर यूनिट वॉल्यूम. सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. स्पेसिफिक मास ओवर वॉल्यूम. स्पेसिफिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी. सो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर था. स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. नाउ मूव टू दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला हुआ है, व्हाट इज गिवन टू यू, अ प्लेट 0.5 millimeter distance from a fixed plate moves at a 1 meter per second and requires a force of 2.2 Newton per meter square to maintain this speed. So एक plate है which is 0.5 mm away from a fixed plate. So let us first draw. यहाँ पे हमारे पास एक fixed plate है. So let me draw. This is your fixed plate. This plate is fixed plate. And हमारे पास एक दूसरी प्लेट है, another plate. We have another plate. So this is the another plate 2, and the distance of this plate from this fixed plate, क्वेश्चन में दिया हुआ है, it is 0.05 millimeter. This is the plate 2 and the distance, and it filled with some fluid. This question में बोला है it is filled with some fluid. This plate is moving with velocity v दिया हुआ है, it is moving with 1 meter per second. Upper plate is moving, this is your upper or movable plate. This plate is moving with velocity 1 meter per second, and distance दिया हुआ है 0.05 millimeter,
एंड द फोर्स रिक्वायर्ड, क्योंकि ये विस्कर ये फ्लूइड है, सो क्या होगा, दिस फ्लूइड विल ऑफर, ये फ्लूइड क्या करेगा, इट विल ऑफर रेजिस्टेंस, इट विल ऑफर रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस की वजह से वी हैव टू डू सम वर्क, वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स टू मूव दिस प्लेट। ये फोर्स दिया हुआ है, सो फोर्स कितना चाहिए, इट इज ऑल्सो गिवन, फोर्स इट इज 2.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स इनडायरेक्टली ये क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्टली 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स इनडायरेक्टली आपको शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, दिस इज इट इज योर शियर स्ट्रेस, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर प्लेट का एरिया, सपोज एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, so then required force will be 2.2 Newton. So that is the meaning. If the area of the plate 1 meter square, so required force will be your 2.2 Newton. So इस केस में we have to find out what is the viscosity of the fluid. तो ये जो fluid भरा हुआ है, so we have to find out what is the viscosity of this fluid. Viscosity of fluid. That means mu find करना है, we have to find out mu. So कैसे find करेंगे, so again इसमें we will use Newton's viscosity law. क्या यूज करेंगे, Newton's viscosity law, and what it says, tau is equal to mu times of du over dy. टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, दिस इज योर शियर स्ट्रेस, दिस इज योर शियर स्ट्रेस, du over dy, this term is your velocity gradient. ये क्या है, दिस इज योर velocity gradient. So let us find one by one. हम यहाँ पे what assume क्या करेंगे कि this particular is fluid is following Newton's law, that means the velocity profile will be linear. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो fluid के particle हैं on the fixed plate, its velocity will be 0. So यहाँ पे velocity of the fluid particle is 0, and particle on this particular plate are moving with velocity 1 meter per second. So velocity gradient could, it will be like this, velocity gradient will be like this, it is linear, so it will be like this. यहाँ पे velocity 0 होगी, then it will increase, further increase, velocity will increase, and here it will be maximum and it will be 1 meter per second. That means जैसे जैसे we move in this direction, velocity of the fluid particle is increasing. So in this particular direction we will measure distance, either distance measure करेंगे, and in this direction we will measure velocity, यहाँ में velocity measure करेंगे, ठीक है, all right. So let me remove some portion. सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है. सो व्हाट इज डी यू कितना होगा, सो डी यू this plate is moving with velocity 1 meter, so let me write, it will be, what will be, it will be 1 minus lower plate is fixed, so du will be your 1 meter per second. All right, upper plate it is moving with velocity 1 meter, लोअर प्लेट क्या है, फिक्स्ड है, सो इट्स वेलोसिटी विल बी 0. सो चेंज इन वेलोसिटी डी यू, और वेलोसिटी ग्रेडियंट निकल के आया 1 माइनस 0, एंड डी वाई, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, तो ये दिया हुआ है, सो इट इज 0.05 millimeter. So this can be written as 0.05 into 10 power minus 3 meter. So in meter 0.5 into 10 power minus 3. Now force shear stress दिया हुआ है, shear stress कितना दिया हुआ है, 2.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So I can write, let me write one more time, tau is equal to mu
tau is equal to mu and this will be your du over dy. Tau कितना दिया हुआ है? It is 2.2 and it is equal to mu du. So du is 1 and divided by 0.05 into 10 power minus 3. 10 power minus 3. Alright, just simplify कर लो, you will get your answer. So cross multiply कर दीजिए. So mu will be 2.2 into 0.05 into 10 power minus 3. Alright, simplify कर लो इसको and you will get, so this will be okay, multiply कर लो, so you will get mu, okay, let me check, कहीं मिस्टेक हो गई क्या? No, बराबर है. This is your dy, this is your du. Alright, so mu, okay, बराबर है. हाँ, so multiply कर लो. 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 11, डेसिमल ये कितने आ जाएगा? 0.01 into 10 power minus 3. This will be your Newton second over meter square, or this can be written as, not here 2 and 1, so यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे लगेगा. So this will come out 0.110 10 power minus 3 Newton second per meter square, or this can be written as 0.11 Newton second को can be written as Pascal and second. Newton per meter square, Pascal क्या होता है? It is Newton per meter square. So this is your answer, 0.11 Pascal second. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. हाउ टू यूज दिस न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम था. डी यू दिया हुआ है, दिस इज योर डी वाई, दिस इज योर डी यू. फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी डी यू एंड डी वाई. सिंपली प्लेस करके यू कैन फाइंड आउट विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई प्लेट है, उसका लेट में हाँ, एरिया ऑफ द प्लेट 0.7 मीटर स्क्वायर इज स्लाइडिंग डाउन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. तो कोई प्लेन है, प्लेन सरफेस, let me draw, and this plane is having angle of 30 degree. So this angle is 30 degree from the horizontal. ठीक है, and here on this surface we have a plate. यहाँ पे एक प्लेट है and this यहाँ पे we have a plate. Let me remove. Okay, यहाँ पे प्लेट है. सॉरी, लेट मी वंस मोर, बार और ट्राई करते हैं. यहाँ पे प्लेट है. ओके, दिस इज योर प्लेट एंड हियर वी हैव अ फ्लूइड. इट इज फिल्ड, यहाँ पे फ्लूइड है. दिस इज योर प्लेट. ऑलराइट, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया इट इज 0.7 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. दिस एंगल 30 डिग्री एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी. वेलोसिटी दिया हुआ है 0.36 मीटर पर सेकेंड. एंड दिस थिकनेस, देयर इज अ कुशन ऑफ द फ्लूइड एंड दिस थिकनेस, ये थिकनेस आपको दिया हुआ है. सो दिस इज योर 1.8 millimeter.
सो ये जो फ्लूइड की थिकनेस है इट इज 1.8 millimeter. अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द विस्कोसिटी, तो हमको विस्कोसिटी फाइंड करना है, म्यू फाइंड करना है, एंड दिस वेट ऑफ द प्लेट, ये जो वेट दिया हुआ वेट ऑफ द प्लेट इज 280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो द प्लेट वेट ऑफ दिस प्लेट इट विल एक्ट डाउन साइड, और ये कितना होगा, दिस विल बी योर mg एंड इट इज इक्वल टू 280 न्यूटन. सो क्वेश्चन पहले समझ लो, क्वेश्चन क्या है. ये प्लेट है, this is your plate and its weight is 280 newton, and there is a fluid between this red surface and this plate के बीच में there is a fluid, and this plate is moving with in the downward direction with velocity 0.36 meter per second, moving with uniform, this is your uniform velocity, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे क्या है, दिस अगेन ये फ्लूइड क्या ऑफर करेगा, दिस फ्लूइड की वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. ये विस्कस की वजह से क्या होगा, विस्कोसिटी की वजह से क्या होगा, there will be the frictional resistance. क्या होगा, frictional resistance, फ्रिक्शनल विस्कस फ्लूइड रेजिस्ट जिसको बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन का रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस किधर वर्क करेगा, ये ऊपर की साइड, बिकॉज दिस प्लेट इज मूविंग डाउनवर्ड, सो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अपवर्ड साइड. विस्कस जिसको एफ एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी फोर्स ड्यू टू शियर. ये जो शियर स्ट्रेस है इसकी वजह से क्या, कितना फोर्स ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट फ्रॉम शियर स्ट्रेस. पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, शियर स्ट्रेस में इफ यू मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया, कितने एरिया पे वो वर्क कर रहा है. ठीक है, शियर स्ट्रेस एंड मल्टीप्लाई सरफेस एरिया. सो वहां से मुझे क्या मिलेगा, वहां से मुझे शियर फोर्स मिल जाएगा, वी विल गेट शियर फोर्स. और इस शियर फोर्स को वी विल इक्वेट बाय, उस शियर फोर्स को हम क्या इक्वेट करेंगे किससे, या वी विल इक्वेट दी forces along the direction of this plane. इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, we will equate the forces, and finally because it is moving with a uniform velocity, so इसका acceleration क्या होगा, 0 होगा. so acceleration 0 होगा, so that means net force on the system क्या है, that means net force on the system क्या है, 0. क्यों 0 है, नेट फोर्स 0 क्यों है, बिकॉज v इज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन विल बी 0. ठीक है, प्लेट इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वजह से एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा. एंड फाइनली नेट फोर्स वो क्या कर देना है हमको, 0 कर, फाइनली क्या कर देना है, उसको 0 कर देना है. उसके 0 के लिए क्या करना है, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 लेंगे. सो लेट अस सॉल्व, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट. क्या कैलकुलेट करते हैं हम, विल फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं फोर्स ड्यू टू शियर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं. सो वो क्या होगा, दैट विल बी शियर स्ट्रेस. शियर फोर्स कितना होगा, शियर स्ट्रेस एंड मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया. ठीक है, शियर फोर्स कितना होगा,
shear force will be shear stress and multiply surface area, and the shear stress कितना होगा, so that will be mu and du over dy. so ये टर्म क्या है, this is my shear stress du over dy, and the surface area, let this is as, a and s for surface area. ठीक है, तो ये तो मेरा आ गया फोर्स ड्यू टू शियर, और ये किधर लगेगा, ये ऊपर की साइड एक्ट करेगा, हाँ ये किधर वर्क करेगा, सो दिस विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन. ऑलराइट, अब क्या होगा, अब ये जो वेट है, दिस वेट mg, so because of the inclination of the plane, now it is, we will resolve it has a two component, one is perpendicular to the plane and another will be along the plane. ये एक component आएगा and this will be your another component. This angle is theta, so this angle will be also with theta. ये angle भी क्या होगा, let me remove this, so this angle will be your theta. ठीक है, और ये component कितना हो जाएगा, this is your mg, this is your mg, so this will be your mg cos theta and this will be your mg sin theta. ऑलराइट, हमने क्या किया कि ये जो वेट था, दिस वाज एक्टिंग डाउन साइड, ये मेरा mg था, ये एंगल क्या हो गया, ये मेरा थीटा था, सो आई हैव रिप्लेस दिस mg बाई टू कंपोनेंट्स. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg साइन थीटा, और ये रिमूव हो जाएगा. मैंने mg को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, वन इज mg cos थीटा, वन इज mg साइन थीटा. सो अलोंग द प्लेन, प्लेन के अलोंग में कौन है, सो प्लेन के अलोंग में है mg साइन थीटा. ठीक है, सो mg साइन थीटा. ठीक है, सो नेक्स्ट में हम कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स along the plane, net force along the plane. so plane के along कितना फोर्स लग रहा है, so डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ये प्लेन की इस साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है, अपवर्ड साइड में, दिस इज योर fs, और नीचे की साइड में क्या लग रहा है, सो दिस इज योर mg साइन थीटा. और कोई फोर्स प्लेन के अलोंग में, ये प्लेन के इस डायरेक्शन में अलोंग में, सो ओनली mg fs एंड mg साइन थीटा. और ये किधर मूव हो रहा है, दिस इज मूविंग डाउन साइड, ये इस साइड मूव हो रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, v इज कांस्टेंट, दैट मीन्स नेट फोर्स विल बी जीरो. सो नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन वी विल इक्वेट कैसे करेंगे, सो इट इज मूविंग डाउन साइड, सो दिस विल बी mg साइन थीटा. नीचे की साइड मूव हो रहा है तो mg साइन थीटा माइनस fs एंड दैट विल बी मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक है, किधर को मूव हो रहा है, प्लेट किधर मूव हो रही है, प्लेट इज मूविंग डाउन साइड, सो नाउ डाउन साइड में मास और जो भी उसका एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू f net. so f net is equal to mass into acceleration and this right hand side will be zero. क्यों जीरो हो गया, since acceleration of the plate is zero. so I can write mg sin theta, mg sin theta it is equal to fs, shear force के बराबर हो गया. ठीक है, mg sin theta it is equal to fs. let me check space लेकिन हाँ या we have a space. so अभी वैल्यूज प्लेस कर दो, so I can write what I can write, mg sin theta, so I can write mg sin theta it is equal to what is fs, and fs की जगह पे क्या लिखेंगे, fs की जगह पे लिखेंगे mu du over dy into as. अभी वैल्यूज प्लेस कर दो, सब आ जाएगा आंसर. हम सो वैल्यूज क्या प्लेस करें, mg वेट कितना दिया हुआ है प्लेट का, प्लेट का वेट यहाँ पे दिया हुआ है, हियर इट इज 280 न्यूटन.
सो इन द प्लेस ऑफ एम जी के प्लेस में क्या रखेंगे, इट इज़ 280 साइन थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री, म्यू हमको फाइंड करना है, डी यू, सो डी यू फाइंड कर लेते हैं, डी यू कितना है, दिस प्लेट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है 0.36, और ये प्लेट दिस इज योर फिक्स्ड, सो डी यू कितना हो जाएगा, सो डी यू विल बी 3.6, सॉरी 3.6 नहीं 0.36, सो इट इज 0.36 0.36, एंड व्हाट इज डी वाई, डिस्टेंस कितना है, सो डिस्टेंस क्वेश्चन कितना का है 18 मिलीमीटर का है, सो डी वाई विल बी 18 मिलीमीटर को कन्वर्ट इनटू मीटर, सो 10 पावर -3 एएस, एरिया कितना है प्लेट का, सो प्लेट का एरिया दिया हुआ है 0.7 मीटर, सो एरिया विल बी 0.7, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो, साइन 30 इज 1/2, 280 इंटू 1/2 इट इज इक्वल टू म्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 18, एक मिनट मिलीमीटर में क्या है 1.8, सॉरी हाँ वेरी सॉरी, दिस इज 1.8, इसको इक्वेट कर लो एक जीरो लगा के, सो दिस विल बी 36 डिवाइडेड बाई 180, और ये ऊपर जाके 10 पावर 3 into 0.7, this will be your 140 mu times, so this will be 10, this will be 2, 1 and 5, so this will be 0.7 divided by 5 into 10 power 3, so mu will be 140 into 5 divided by 0.7, and this is 10 power 3, right, simplify कर लो इसको, so 0.7, let me write this, so this will cancel out, it will come out 200 multiply, so this is 1000 divided by 10 power 3, so this is your 1, so mu it is 1 Newton second per meter square, or it is 1 Pascal second, so this is your answer, all right, ठीक है, क्या करना था हमको, just equate the forces along this plane will be, along this plane, या तो आप चाहो तो इसको निगलेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सो जस्ट इक्वेट दी फोर्सेस, दोनों साइड में आप फोर्सेस को बैलेंस कर लो एंड यू विल गेट दी आंसर, बट शियर फोर्स कैसे फाइंड करना है, बाय शियर स्ट्रेस एंड मल्टीप्लाई बाय दी सरफेस एरिया ऑफ द फ्लूइड, सरफेस एरिया फ्लूइड का वो एरिया जो कांटेक्ट में है, जितना एरिया कांटेक्ट में होगा वो एरिया हमको कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी हैव एक साफ्ट है 150 mm diameter shaft and it is rotating with 1500 rpm in a 200 mm long journal bearings with this much of the internal diameter, so एक shaft है जो एक bearing में rotate हो रहा है, so let me draw this shaft, so इस तरह से यहाँ पे एक shaft है, this is the shaft and it is rotating in a bearing, so यहाँ पे कोई bearing है जिसमें ये rotate कर रहा है, ये इस तरह से टेढ़ा लग रहा है जस्ट, so this is your shaft, and यहाँ पे bearings है दोनों साइड से, नॉट दोनों साइड, ये जस्ट व्यू दिखने में ऐसा लगेगा, so this is your bearing, ठीक है, and it is filled with fluid, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे fluid है, and the length, ये length दिया हुआ है, this length is
200 mm, ये 200 mm है। ये डायमीटर कितना है, दिस इज योर 150 mm, दिस इज 150 mm। और ये टोटल कितना है, डिस्टेंस बिटवीन बियरिंग ये दिया हुआ है 150.5 mm, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज योर 150.5 mm ये दिया हुआ है। अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये एक शाफ्ट है, दिस इज योर शाफ्ट, और इट इज प्लेस्ड इन अ बियरिंग्स, तो ये इस तरह से बियरिंग्स है, यहाँ पे दिस विल बी योर बियरिंग्स, ये मेरा ये इस तरह से बियरिंग है, दिस इज योर बियरिंग, ठीक है। एंड ये दिस इज योर शाफ्ट, ये शाफ्ट है, और यहाँ पे क्या है, दिस इज फिल्ड विथ फ्लूइड, ये फ्लूइड से भरा हुआ है, दिस इज फिल्ड विथ फ्लूइड, ठीक है। इट इज गिवन एन जो स्पेस है एंड द बियरिंग इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी 0.8, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है इसकी विस्कोसिटी दिया हुआ है म्यू, इट इज 0.8 पॉइस। अब ये यूनिट पॉइस में दिया हुआ है, सो कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू न्यूटन सेकेंड, सो दिस विल बी 0.8 एंड मल्टीप्लाई 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सो इट विल कम आउट 0.08 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पहले पॉइस में दिया हुआ है तो उसको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1/10। सो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं क्या है, कि यहाँ पे एक शाफ्ट है, दिस इज योर शाफ्ट एंड इट इज रोटेटिंग इन अ बियरिंग्स, सो ये यहाँ पे सपोज ये बियरिंग्स है एंड इन बिटवीन देयर इज अ फ्लूइड, द लेंथ ऑफ द बियरिंग, ये जो बियरिंग की लेंथ है, दिस पोर्शन इज गिवन टू यू 120 millimeter, so we have to find out what is the power dissipated as a heat। so power dissipated as a heat का मतलब we have to find what is the power loss, कितनी पावर जो है वो लॉस हो जा रही है, किसकी वजह से लॉस होगा, बिकॉज ऑफ द फ्लूइड विस्कोसिटी। ये जो विस्कोसिटी है ये क्या करेगा, इट विल ऑफर अगेन कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और जो पावर आप सप्लाई करोगे दैट सम अमाउंट ऑफ पावर विल बी लॉस्ट इन अगेंस्ट ऑफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। सो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सो पावर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर इज कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेट ऑफ वर्क डन, सो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये इस तरह से करते हैं कि नहीं हम, पावर क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क को क्या लिखते हैं, वर्क को लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क को क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू, और दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी, सो दिस इज योर फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अल्टीमेटली ये हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फोर्स, कौन सा फोर्स कैलकुलेट करना है हमको, फोर्स ड्यू टू शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, शियर फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स का, सॉरी, जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ शियर स्ट्रेस, एंड शियर स्ट्रेस को इफ यू मल्टीप्लाई बाय द सरफेस एरिया वी विल गेट द शियर फोर्स, एंड द वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी, दिस विल बी योर लीनियर वेलोसिटी, नॉट एंगुलर वेलोसिटी, सो दिस इज योर लीनियर वेलोसिटी। सो लीनियर वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे एंड मल्टीप्लाई शियर फोर्स, दैट विल गिव यू पावर लॉस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, पावर क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी। तो अल्टीमेटली हमको ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, फोर्स दैट इज शियर फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है, शियर फोर्स एंड वेलोसिटी। अब ये शियर फोर्स कहाँ से आएगा, शियर स्ट्रेस एंड मल्टीप्लाई बाय द शियर स्ट्रेस एंड मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया, ठीक है।
सो सबसे पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, व्हाट विल बी वेलोसिटी। ठीक है, ये तुम जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको। सो लेट मी remove this portion. So let us first calculate what is the linear velocity of the shaft. So let us calculate what is linear velocity. So linear velocity u क्या होगा? So इसका रोटेशन दिया हुआ है, n कितना है, n क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज 1500 आरपीएम। ठीक है, एंगुलर रोटेशन दिया हुआ है तो u क्या होगा? सो पाई डी एन डिवाइडेड बाय 60। अगर आपको आरपीएम दिया हुआ है रोटेशन पर मिनट, सो लीनियर वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, वहाँ से अगर उसको डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बी पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, प्लेस कर लो वैल्यू। सो u इज इक्वल टू पाई कितना होगा? 3.14 डायमीटर। सो शाफ्ट का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 150। सो 150 इंटू 10⁻³ इन द मीटर n। रोटेशन कितना दिया है? 1500 आरपीएम एंड डिवाइडेड बाय 60। सो दिस विल, इसको कैलकुलेट करते हैं। सो ये कितना आएगा? दिस विल बी कैंसल आउट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सो इट विल कम आउट 11.78 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी योर वेलोसिटी, ठीक है, तो ये जो शाफ्ट है यहाँ पे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी? 11.78 मीटर। अभी डी वाई कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज दिस, क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे होगा। यहाँ पे कैसे बनेगा? एक प्रोफाइल यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे वन प्रोफाइल विल बी एट दिस साइड, यहाँ पे एक प्रोफाइल बनेगा एट दिस पॉइंट एंड वन प्रोफाइल विल बी हियर एट हियर। ठीक है, दिस बियरिंग, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? 0। यहाँ पे वेलोसिटी इट विल बी 11.78 मीटर पर सेकेंड। सो डी वाई कितना होगा? सो डी वाई, सो व्हाट विल बी डी वाई? दैट मीन्स ये स्पेस कैलकुलेट करना है, ये कितना होगा ये। सो दिस विल बी आवर डी वाई। सो उसके लिए क्या करेंगे? सो हम इस तरह से सोच सकते हैं कि दिस इंटायर लेंथ इज 150.5, so I can write this is 150.5 minus 150, and this is in millimeter, so we convert into meter, so 10⁻³ and it's half divided by 2। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 150.5, उसमें से क्या निकाला? 150, और इस साइड भी है और इस साइड भी, सो डिवाइड बाई 2। सो इसको कर लो। सो दिस विल बी ऊपर आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। सो दिस इज y, dy, एंड दिस इज योर u। ठीक है, ये शाफ्ट एंगुलर रोटेशन कर रहा है, सो दैट इज वाई लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? v इंटू आर, सॉरी आर इंटू ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा कितना होता है? 2πn डिवाइड बाई 60। वहाँ से कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। सो लेट अस कैलकुलेट शियर स्ट्रेस कितना होगा। सो लेट अस कैलकुलेट शियर स्ट्रेस। व्हाट इज शियर स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस विल बी म्यू du ओवर dy। म्यू कितना दिया हुआ है? विस्कोसिटी कितना दिया हुआ है? 0.08, सो इट इज 0.08। du हमने कैलकुलेट किया, वेलोसिटी कितना आया था? दिस इज 11.78, और ये क्या है? दिस यहाँ पे वेलोसिटी इट इज 0, सो dy विल बी 11.78, du विल बी 11.78 एंड dy 0.25 इंटू 10⁻³ सो दिस इज शियर स्ट्रेस। इसको कैलकुलेट कर लो। सो ये आ जाएगा हमारा
3.7696 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया शियर स्ट्रेस। और द शियर फोर्स that is Fs, so that will be tau into As, shear stress and multiply surface area। अब यहाँ पे surface area कैसे निकालेंगे, तो surface area कितना कांटेक्ट में है, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया विल बी इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है, सो दैट विल बी पाई डी एल। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा पाई डी, और कितनी लेंथ पे है, एल लेंथ में, सो पाई डी इंटू एल, सो दैट विल बी योर सरफेस एरिया। सो यहाँ पे जो सरफेस एरिया लेंगे, सो सरफेस एरिया विल बी पाई, दिस विल बी योर पाई डी एंड एल, पाई डी एल प्लेस कर दो यहाँ पे, सो इट विल 3.7696 10⁻³ पाई विल बी 3.14 डायमीटर, सो डायमीटर है 150 इंटू 10⁻³ ठीक है, पाई डी हो गया। एंड एल लेंथ कितना दिया हुआ है, सो लेंथ इज गिवन 200 मिलीमीटर, सो 200 मिलीमीटर दैट इज 200 एंड मिलीमीटर है तो मीटर में, सो इट विल बी 10⁻³ मल्टीप्लाई कर लो सबको, सो कितने जीरो, दिस एंड दिस 3, दिस विल बी कैंसल आउट, 15 मल्टीप्लाई 3.4 एंड दिस, एंड ये कैंसल हो जाएगा, दिस विल बी कैंसल आउट, so it will come out 355 Newton. So this is the shear force ये आया 335 न्यूटन। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की कर ली है, सो पावर लॉस कितना होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू shear force इंटू लीनियर वेलोसिटी, shear force इंटू लीनियर वेलोसिटी। shear force आया 355 इंटू वेलोसिटी हमारी आई थी 11.78, आप मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर 4181.9, दिस विल बी इन वॉट, और you can write in kilowatt, so kilowatt will be 4.182 kilowatt। ठीक है, सो बियरिंग के केस में, जर्नल बियरिंग के केस में सरफेस एरिया क्या होगा, दैट विल बी पाई डी एल। एक तो ये याद रखना है, कांटेक्ट वो एरिया लेना है विच इज इन कांटेक्ट विथ फ्लूइड, क्योंकि उसी एरिया पे विस्कोसिटी की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, सो शियर फोर्स कहाँ से आएगा, शियर स्ट्रेस से आएगा। एंड पावर लॉस के लिए अगेन वही शियर फोर्स एंड मल्टीप्लाई वेलोसिटी से। एक बार फिर से देख लो, लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, पाई डी एन, ये क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, ओमेगा आर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, और 2r को क्या लिख दिया, डायमीटर लिख दिया, पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60। सो यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर ली, दिस इज योर, रिमेंबर दिस इज योर लीनियर वेलोसिटी एंड रोटेशन पर मिनट है। डी वाई यहाँ से कैलकुलेट कर लो, चाहे तो आप चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो, 150 का हाफ कर लो, 155 का हाफ कर लो, यहाँ से इसको सेंटर से डिवाइड कर दो किसी भी एक साइड पे, यू कैन फाइंड आउट डी वाई। और यहाँ पे वन साइड किया है, लेकिन हमने एरिया क्या लिया है, पाई डी एल लिया है, दैट मीन्स इंटायर दोनों साइड का एरिया हमने एक साथ में कैलकुलेट कर लिया। सो पाई डी एल दैट विल बी सरफेस एरिया, एंड वहाँ से शियर फोर्स, एंड देन पावर लॉस इन दी पावर लॉस एज अ हीट। ये कैसे जाएगा पावर लॉस, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द हीट। ठीक है, सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि देयर इज अ डिस्क 120 मीटर डिस्क रोटेट्स ऑन अ टेबल सेपरेटेड बाय ऑयल फिल्म ऑफ 1.8 मिलीमीटर थिकनेस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डिस्क है। सो हियर वी हैव अ डिस्क, इट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। सो लेट मी ड्रॉ, यहाँ पे एक डिस्क है, इट इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल। सो इट इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल, सेंट्रल यहाँ पे प्लेट है, इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड है। ऑलराइट, दिस इज द सेंटर लाइन, ये सेंटर हमने, ठीक है, you can assume this is the center line and it is rotating this particular thickness, ये जो thickness है, this thickness, ये कितना दिया हुआ है, this is 1.8 millimeter and this diameter दिया हुआ है डिस्क का, ये जो diameter है this is given to us, ये कितना दिया हुआ है, this is 120 millimeter, this is 120 millimeter and this is rotating, ये डिस्क रोटेट हो रहा है with 60 rpm, 60 rpm, this is your n rotation per minute। और क्या बोला हुआ है, assume that the velocity gradient in the oil film is linear, that means ये क्या बोल रहा है कि this particular यहाँ पे जो fluid है it is Newtonian fluid, that means यहाँ पे जो velocity gradient होगा that will be in the linear form, linear, यहाँ पे velocity तो होगा velocity gradient that is the linear relation, जो shear stress और velocity gradient है उसके बीच में जो relation होगा that is linear relation, this tau is proportional to du over dy। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन ही है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट दिस डिस्क। तो हमको इस डिस्क को रोटेट करने के लिए कितना टॉर्क चाहिए वो हमको फाइंड करना है। अब ये क्या है, ये रोटेटिंग फ्रेम में है, दिस इज, ये क्या है, ये रोटेटिंग, दिस इज इन रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग डिस्क है। सो यहाँ पे टॉर्क मीन्स इन द लीनियर फ्रेम में कैसा होता है, फोर्स जैसा है, दिस इज योर फोर्स जैसा ही कैलकुलेट करना है, बट रोटेट कर रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट टॉर्क। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, हाउ टू कैलकुलेट दिस टॉर्क, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा सोचो, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले के जितने भी प्रॉब्लम थे वहाँ पे क्या था, वेलोसिटी वाज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी that is the linear velocity, I am talking about linear velocity, that was uniform, uniform means constant थी, but यहाँ पे constant नहीं है। यहाँ पे constant क्यों, अगर मैं टॉप व्यू ड्रॉ करूँ तो ये डिस्क कैसा दिखेगा, इट विल लुक्स लाइक अ सर्कल, ऊपर से देखने पे ये कैसा दिखेगा, इट विल लुक्स लाइक अ सर्कल, ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ओहो, सो दिस डिस्क कैसा दिखेगा, तो ये एक सर्कल दिखेगा, ठीक है। दिस विल बी द सेंटर ऑफ द डिस्क, और ये ऊपर से देखने पे ऐसे रोटेट हो रहा है, दिस इज रोटेटिंग, दिस इज द सेंटर लाइन, ये सेंटर हो गया, दिस सेंटर लाइन। सो लीनियर वेलोसिटी क्या है, इट इज द फंक्शन, इट इज वेरीज विथ रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा तो यूनिफॉर्म है, n 60 दिया हुआ है, सो ओमेगा इज यूनिफॉर्म, बट रेडियस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी विल बी 0, सेंटर पे लीनियर वेलोसिटी 0 होगी, क्यों,
क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, 0 है। सेंटर से थोड़ा दूर जाएंगे, यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज r1, सो वेलोसिटी विल बी r1। यहाँ पे डिस्टेंस हम ले लेते हैं फ्रॉम द सेंटर, दिस डिस्टेंस इज r2, दिस इज r1, सो यहाँ पे वेलोसिटी होगी ओमेगा r2। और थोड़ी दूर जाएंगे, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट दिस डिस्टेंस इज r3, सो वेलोसिटी विल बी ओमेगा इंटू r3। फिर जितने भी पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, हियर डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, सो every point every point have a different velocity. Why? Because r is changing, radius is continuously changing, so that is velocity will not be uniform. इससे पहले वाले के केस में क्या था, जैसे यहाँ से यहाँ पे आउटर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी होगी r टाइम्स ऑफ ओमेगा। जो रेडियस अगर ये कैपिटल आर है, सो दिस विल बी कैपिटल आर इंटू ओमेगा, सो वेलोसिटी विल बी r टाइम्स ऑफ ओमेगा। सो इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो इस केस में वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या वी टेक, कैसे करेंगे, वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे एंड वी विल राइट shear force on that particular element। उस छोटे से एलिमेंट पे हम क्या करेंगे, shear force लिखेंगे। so let me draw once more, this is the plate। तो क्या करेंगे हम, what we will take a small element, so this is the small element, this is the small element at a distance r, and this thickness of this एलिमेंट इज dr। ठीक है, हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, व्हाट द एलिमेंट, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट इज dr। ये एलिमेंट है जो है वो dr थिकनेस का है, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। ठीक है, सो अभी जो भी कैलकुलेशन करेंगे वी विल डू for this particular element। ठीक है, so let us write what is the linear velocity, so let me write linear velocity of the element, linear velocity of the element। तो कितना होगा, what will be linear velocity, या बोलो क्या होगा linear velocity। तो कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, एंड व्हाट इज एंगुलर स्पीड, ओमेगा, सो दैट विल बी योर, ये लीनियर वेलोसिटी होगा। सो व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी आ गई, तो आई कैन राइट व्हाट विल बी द शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस किसके लिए, शियर स्ट्रेस ऑन द एलिमेंट। ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है, व्हाट विल बी द शियर स्ट्रेस, so that let me write this will be d tau, because small element, so उसके लिए हम टाउ की जगह पे नाउ वी आर आई एम यूजिंग d tau। so d tau कितना होगा, अगेन इट विल बी म्यू टाइम्स म्यू du एंड dy। न्यूटन्स का जो लॉ है वो तो यही लगेगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू ऑफ dy। म्यू ऐसे रखते हैं, व्हाट विल बी du, सो du के r डिस्टेंस पे जब जाएंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी, r इंटू ओमेगा, एंड व्हाट इज दी, इस यहाँ की वेलोसिटी क्या है, 0, सो इट विल बी du कितना हो जाएगा, r इंटू ओमेगा। व्हाट विल बी y कितना होगा, y कितना होगा, सो व्हाट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, सो दिस इज 1 पॉइंट। अभी के लिए लेट एज्यूम दिस इज t, सो द थिकनेस, फ्लूइड की जो थिकनेस है इट इज t, सो दिस विल बी योर d टाउ। ठीक है, du जैसे हमने पहले एलिमेंट के लिए लिखा है, ऐसा एज्यूम कर लो कि अभी हम ये प्लेट, दिस इज मूविंग विथ r ओमेगा, दिस इज योर फिक्स्ड, ये फिक्स है, एंड दिस डिस्टेंस इज t। सो du ओवर dy कितना होगा, r ओमेगा बाई t, सो du ओवर dy, and this is your omega, so this is small shear stress।
शियर स्ट्रेस आ गया तो नाउ आई विल राइट द शियर फोर्स। शियर स्ट्रेस आ गया तो शियर फोर्स भी लिख लेते हैं, सी। शियर फोर्स ऑन द एलिमेंट कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी डी एफ, और डी एफ कितना होगा, डी टाउ इंटू ए एस। ठीक है, शियर फोर्स कितना होगा, शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया कितना होगा, इस स्मॉल एलिमेंट का सरफेस एरिया कितना होगा, हम यहाँ से आर डिस्टेंस पे गए हैं तो एक पूरा सर्कल यहाँ पे बनेगा। एंड व्हाट विल बी इट्स थिकनेस विल बी डी आर, ये पूरा रिंग। सो व्हाट दिस विल बी योर 2 पाई आर एंड इंटू डी आर। जो रिंग बना है, इस रिंग की थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ दिस रिंग इज डी आर। सो 2 पाई आर, और ये चाहे तो बाहर में से आई माइनस कर लो, अदरवाइज यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। सो 2 पाई आर इंटू डी आर। सो डी टाउ विल बी म्यू आर ओमेगा ओवर टी, एंड डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, सरफेस एरिया किसका लिखा, ये रिंग का लिखा। आप इसको दोनों डायमेंशन में एज्यूम करना पड़ेगा कि ये ऊपर से देखेंगे, अगर इसको यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इस साइड से देखेंगे, सो इट विल लुक्स लाइक अ सर्कल, सर्कल से इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सो दिस विल बी द स्मॉल फोर्स। हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है। सो लेट अस राइट द टॉर्क ऑन द एलिमेंट, टॉर्क ऑन द एलिमेंट। हमने शियर फोर्स लिख लिया, सो टॉर्क क्या हो जाएगा, शियर फोर्स और उस फोर्स का डिस्टेंस कितना है। सो दिस विल बी डी एफ एंड मल्टीप्लाई आर। ये फोर्स, शियर फोर्स कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है फ्रॉम द सेंटर, आर डिस्टेंस पे है। सो डी एफ एंड मल्टीप्लाई बाई आर। सो दिस विल बी म्यू आर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई टी, एंड दिस विल बी 2 पाई आर डी आर एंड मल्टीप्लाई आर। ठीक है, दिस इज योर डी एफ, ये पूरा टर्म है डी एफ, एंड दिस इज योर रेडियस। टॉर्क क्या होता है, दिस इज योर डी टी, छोटा सा टॉर्क, और टॉर्क ऑन द एलिमेंट। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रोसीड फ्रॉम ए स्मॉल एलिमेंट। इस छोटे से एलिमेंट के लिए सब कुछ लिख डालो, जो भी पता है, जो पता है वो लिख डालो। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए क्या क्या पता है हमको, उसकी लीनियर वेलोसिटी पता है। सो आई कैन राइट शियर फोर्स भी लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस से शियर फोर्स लिख दिया, शियर फोर्स से टॉर्क लिख दिया। प्रोसीजर क्या है, लीनियर वेलोसिटी आ गई, शियर स्ट्रेस कहाँ से लिखा, म्यू टाइम्स ऑफ डी ओवर डी वाई से लिखा। शियर फोर्स के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया। शियर फोर्स में रेडियस कितनी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट दी टॉर्क। अब ये छोटा सा टॉर्क है, दिस इज टॉर्क ऑन दिस एलिमेंट। सो द टोटल टॉर्क के लिए क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू आर। इसका रेडियस लेट दिस इज कैपिटल आर। सो टोटल रेडियस के लिए, टोटल टॉर्क के लिए इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 टू आर। सो व्हाट विल बी टोटल, so let me write what will be total torque due to viscosity. Total torque कितना हो जाएगा, that will be T, and what will be that, this will be integration of 0 to R and dt. Elemental torque का उसको इंटीग्रेट कर दो, सो T विल बी 0 टू R, क्या है 0 टू R क्या है, म्यू इंटू आर ओमेगा ओवर टी।
सो म्यू आर ओमेगा ओवर टी मल्टीप्लाई 2 πr dr एंड मल्टीप्लाई आर। ठीक है, 2 πr dr क्या है, दिस इज सरफेस एरिया मल्टीप्लाई आर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका टॉर्क आ गया। सो म्यू, दिस इज म्यू कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है। सो 2 पाई म्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई टी, दिस इज, ये सारे टर्म क्या है, 2 पाई म्यू ओमेगा टी, दीज आर दी कांस्टेंट्स। सो आई कैन, दिस इंटीग्रेशन विल बी सिंप्लीफाई 0 to r, r and r, so this will be r cube dr। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस विल बी 2 पाई, अभी तो सॉल्व हो गया, म्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई टी एंड द इंटीग्रेशन विल बी r का क्या हो जाएगा, r पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 4। लिमिट रख दो 0 to r, कैपिटल R। सो t विल बी 2 पाई म्यू ओमेगा ओवर t एंड दिस विल बी r पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, r पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी पाई म्यू w ओमेगा, सॉरी नॉट w, ओमेगा r पावर 4 डिवाइडेड बाई 2t। सो दिस विल बी योर टॉर्क, दिस विल बी योर टॉर्क। ठीक है, अब इस पे जो जो वैल्यूज दी हुई है उसको रख लो। सो पाई विल बी 3.14 इंटू विस्कोसिटी कितना दिया हुआ है, विस्कोसिटी कितना दिया हुआ है, विस्कोसिटी, अरे विस्कोसिटी हमको फाइंड ही करनी है, फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ दी, हाँ ये टॉर्क दिया हुआ है हमको, टॉर्क दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन मीटर टॉर्क दिया हुआ है। सो टॉर्क कितना है, 3.6, सॉरी कितना दिया हुआ है, 3.6 इंटू 10 पावर -4। सो दिस इज 3.6 इंटू 10 पावर -4, दिस इज योर टॉर्क। सो पाई म्यू फाइंड करना है, ओमेगा, ओमेगा कैलकुलेट किया हमने, नहीं कैलकुलेट किया तो यहाँ लिख देते, दिस विल बी 2 पाई एन, एन कितना है 60। ठीक है, आर रेडियस, सो डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 100, डायमीटर दिया है 120। सो आर विल बी 60 mm। 60 mm को क्या मिलीमीटर में क्या लिख देंगे, दिस विल 0.06 मीटर। सो ये कितना आ जाएगा 0.06 एंड इट्स पावर इज 4 एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड थिकनेस, थिकनेस कितना दिया हुआ है, थिकनेस है 1.8 मिलीमीटर का। सो 1.8, सो इट विल बी 1.8 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, सो दिस इज योर टॉर्क, पाई म्यू ओमेगा 2 पाई एन एंड डिवाइडेड बाई 60 भी करना पड़ेगा। सो 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, अभी बराबर है 2 पाई एन एंड डिवाइडेड बाई 60 एंड दिस इज योर r पावर 4 एंड दिस इज योर 2t। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सो व्हेन यू डू दिस कैलकुलेशंस इट विल कम आउट, म्यू इज, it will come out approximately 0.00506 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको एक एलिमेंट लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एलिमेंट क्यों ले रहे हैं, वाई, बिकॉज लीनियर वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, दैट इज वाई वी हैव टू टेक स्मॉल एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देयर आर 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, दिस इज प्लेट 1, प्लेट 2
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है, दिस इज 12 mm, 12 mm। यहाँ पे फ्लूइड की विस्कोस फ्लूइड, इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड है एंड देयर इज अ थिन प्लेट, इसके बीच में एक थिन प्लेट रखी हुई है। तो दो केस में सॉल्व करना है। व्हेन दिस प्लेट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द प्लेन, सो पहले केस पे एज्यूम कर लीजिए जो प्लेट है दिस इज सेंट्रली प्लेस्ड, सो ये प्लेट यहाँ पे है, दिस इज द प्लेट सेंटर में प्लेस किया है, इट्स एरिया इज गिवन टू यू 0.25 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वेलोसिटी इज गिवन 0.3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी दिया हुआ है प्लेट का 0. सो कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स। तो हमको इस पे क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का मतलब है फ्रिक्शनल विस्कस फोर्स ऑफर्ड बाय द फ्लूइड, फ्लूइड ने कितना विस्कस फोर्स ऑफर किया वो हमको फाइंड करना है, विस्कस फोर्स। तो फिर से अभी इसमें क्या होगा, व्हेन दिस प्लेट इज सेंट्रली प्लेस्ड, सो केस प्रॉब्लम 1 में व्हेन इट इज सेंट्रली प्लेस्ड, सो अपर सरफेस इट इस साइड में, दिस इज योर अपर सरफेस, अपर, and this is your lower surface. So viscosity की वजह से जो resistance develop होगा, it will be developed on upper surface as well as on the lower surface, दोनों surface पे resistance develop होगा। ठीक है, तो velocity अगर प्रोफाइल में ड्रॉ करूँ तो velocity प्रोफाइल कहाँ कैसे डेवलप होगा, यहाँ पे जीरो velocity है, so this will be the profile of the velocity, linearly varies होगा। so यहाँ पे velocity this, यहाँ पे क्या होगा, velocity will be 0 क्योंकि ये stationary है। यहाँ पे velocity on the upper surface it will be 0.3। इस साइड ड्रॉ करेंगे तो again this will be the velocity profile। ठीक है, ये velocity profile ऐसे बनेगा। so दोनों साइड में इधर भी शियर फोर्स लगेगा और इधर भी शियर फोर्स लगेगा, सो दोनों साइड पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट अस कैलकुलेट डी यू कितना होगा, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, सो डी यू विल बी 0.3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी 0.3, दिस विल बी 0, सो डिफरेंस विल बी 0.3। डी वाई, सो डी वाई कितना होगा, टोटल डिस्टेंस दिस इज 12 मिलीमीटर एंड दिस डिस्टेंस विल बी 6 मिलीमीटर। ठीक है, हाफ उसका होगा, सो 6 मिलीमीटर, सो डी वाई विल बी 6 मिलीमीटर, दैट इज 6 इंटू 10 पावर -3 मीटर। ठीक है, सो अगर मैं ऊपर फोर्स कैलकुलेट करूँ, शियर स्ट्रेस ऑन दी टाउ 1 उसको बोलते हैं, तो टाउ 1 कितना होगा, म्यू, एंड दिस विल बी डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, टाउ कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में टाउ दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस इट इज गिवन, सो म्यू it is 0.972 and it is Newton second meter square, so it will be 0.972, this is your viscosity। du कितना होगा 0.3 and dy will be 6 into 10 power -3, so कितना हो जाएगा, this will be 20, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0.97 and this will come out 2 4 जा 8 जा 6 जा 40 and decimal 48.6 Newton per meter square। So this is the shear force on upper side, shear stress not shear force, this is the shear stress। तो shear force कितना लगेगा, shear force on the upper surface, on the upper surface। so क्या करना पड़ेगा, F, let this call this as FS1, shear force on upper surface, so this will be tau 1 into surface area। surface area प्लेट का दिया हुआ है, so 48.6 and the surface area is surface area 0.25,
सो इसका 1/4 कर दें, सो 1/4 कितना हो जाएगा, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 1 जा एंड 4 5 जा, सो दिस विल बी योर न्यूटन। ठीक है, दिस इज सरफेस एरिया, this is the shear stress. So this is the force acting on the upper surface of the plate. So same amount force किधर लगेगा, डाउन साइड में लगेगा, because it is symmetrically placed है. So on similarly, or you can mark, because this is plate, you can write similarly for लोअर सरफेस के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, लेट दिस इज Fs2, सो Fs2 विल बी 12.15 न्यूटन। ठीक, क्योंकि ये dy भी यहाँ इसके लिए कितना है, 6 मिलीमीटर है, इसके लिए 6 मिलीमीटर है, अगेन दिस विल बी du कितना होगा 0.3 मिलीमीटर, और ये सेंटर में प्लेस किया हो तो बाय सिमेट्री यू कैन यूज, दिस इज 12.15 on upper surface, 12.15 on lower surface. So the net force कितना हो जाएगा, so net force कितना हो जाएगा in this case, so let me write net force कितना हो जाएगा, net shear force that will be Fs1 plus Fs2, Fs1 and Fs2 will be 24.30 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर इन द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दोनों साइड पे कैलकुलेट करना है, अपर एंड लोअर। सो du dy टाउ उसी से कैलकुलेट करेंगे, टाउ आ गया तो फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, शियर फोर्स के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई सरफेस एरिया, and it is centrally placed है, equidistant है from both the surface, so tau 1 and tau 2 will be same, और tau 1 और tau 2 same हो गए, that means Fs1 and Fs2 will be same। ठीक है, in the second part क्या बोला हुआ है, when it is 4 centimeter from one of the plane surface, अभी ये सेंटर में प्लेस नहीं किया हुआ है, it is same question, this is the upper plane, lower plane, and here we have a plate, this is your plate। All right, this distance 4 millimeter, so this will be your total distance was 12 था, so this will be your 8 millimeter। ठीक है, again all our remaining things are similar, this plate is moving with velocity v 0.3 meter per second, एरिया वही है 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या चेंज होगा इसमें, डी वाई दोनों केस में अलग अलग है, यहाँ पे 4 मिलीमीटर है, यहाँ इट विल बी 8 मिलीमीटर, वहाँ पे तो हमको यहाँ पे केस 2 में वी हैव टू कैलकुलेट सेपरेटली। सो Fs1 कितना होगा, अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ Fs1 कितना होगा, सो Fs1 विल बी टाउ 1 इंटू AS, टाउ 1 कितना होगा, म्यू इंटू du ओवर dy एंड मल्टीप्लाई AS। ठीक है, म्यू कितना होगा, विस्कोसिटी कितनी दी थी, 0.972 दिया हुआ था, इंटू du, सो du कितना होगा 0.3, dy पहले यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, प्रोफाइल कैसी बनेगी, प्रोफाइल इस तरह से बनेगा, यहाँ पे दिस विल बी द वेलोसिटी प्रोफाइल, यहाँ पे it will be like this will be your velocity profile। ठीक है, so 0.3 dy कितना हो जाएगा 4 मिलीमीटर, so 4 into 10 power minus 3 and area will be 0.25। ठीक है, 4 मिलीमीटर रख दिया, so 0.25, इसको सिंप्लीफाई कर लो, so ये कितना आ जाएगा 0.75 and 4, so 0.972 into 0.075 into 10 power 3 and divided by 4, so it will come out 18.22 Newton।
ठीक है 18.22 न्यूटन। तो सिमिलरली Fs2 कैलकुलेट कर लो, Fs2 सेम होगा टाउ 2 इंटू एस, यहाँ पे डिस्टेंस इज डिफरेंट सो दैट इज वाई, so this will be mu into du over dy and multiplied by as. Mu again 0.972, du कितना होगा 0.3, dy कितना होगा यहाँ के केस में ऊपर वाले 8 मिलीमीटर, सो 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 0.25, जस्ट उसका है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 8 है, सो जस्ट उसका हाफ कर दो, सो इट विल कम आउट 2 9s are 11 न्यूटन। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से यहाँ पे कितना है, दिस इज योर 4, उसका हाफ ही करना है, जैसे यहाँ पे 4 है, here it is 8, तो 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, सो दिस 4.11 न्यूटन। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, Fs1 प्लस Fs2, ऐड कर दो 9.11 प्लस Fs1, सॉरी दिस इज 2, so it will be 18.22 plus 9.11, so it will come out 27.33 न्यूटन। ठीक, 27.33 न्यूटन। So Fs2, Fs1 in this case both will be डिफरेंट क्यों है, बिकॉज डिस्टेंस का डिफरेंस है। पहले वाले केस में क्या था, यार इट इज इक्वी डिस्टेंस, सो सेंटर में प्लेस थे, तो सेंटर में प्लेस थे, सो डी वाई दोनों केस में सिमिलर था, सेम था, सो वहाँ पे डबल कर दे, बट हियर डी वाई एंड हियर डी वाई आर डिफरेंट। फॉर दिस it is 4 millimeter, for upper surface 8 millimeter and for lower surface 4 millimeter। so ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। so, अलग अलग सरफेस के लिए टू सरफेस है, सो अपर सरफेस हैव अ डिफरेंट शियर फोर्स, लोअर सरफेस पे भी शियर फोर्स लगेगा, सो दोनों सरफेस पे कैलकुलेट करना है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है मेटल प्लेट का ये डायमेंशन दिया हुआ है, थिक एंड वेट दिया हुआ है, प्लेस्ड मिड वे और 24 मिलीमीटर गैप बिटवीन टू वर्टिकल प्लेन सरफेस एज शोन इन फिगर। तो ये दिस आर द टू प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन इज 24 मिलीमीटर, दिस प्लेट इज सेंट्रली प्लेस्ड, विस्कोसिटी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.85 एंड डायनेमिक विस्कोसिटी दिया हुआ है। तो डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द प्लेट विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 0.05 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये प्लेट सेंटर में ही रखा हुआ है ना, दिस इज इट इज गिवन कि ये मिडवे में प्लेस किया हुआ है। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज फिल्ड विथ फ्लूइड, यहाँ पे भी फ्लूइड है, यहाँ पे भी फ्लूइड है, फिल्ड विथ फ्लूइड। सो ऑब्वियसली ऑन दिस सरफेस अगर ये प्लेट ऊपर की साइड मूव करेगा तो शियर फोर्स विल एक्ट डाउन साइड ऑन दिस सरफेस, यहाँ पे शियर फोर्स लगेगा। सो ऑन दिस सरफेस देयर विल बी शियर फोर्स, यहाँ पे शियर फोर्स लगेगा। सिमिलरली इस साइड पे लगेगा शियर फोर्स Fs2 Fs1। ठीक है, दोनों साइड पे शियर फोर्स लगेगा Fs1 एंड Fs2 एंड सेंटर में प्लेस किया हुआ है। सो सेंटर में प्लेस करने से क्या होगा, Fs1 एंड Fs2 विल बी इक्वल, दोनों क्या हो जाएंगे, Fs1 दैट इज इक्वल टू Fs2 हो जाएगा। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लेट अस देखते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। सो स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, इट इज 0.85। सो डेंसिटी कितना हो जाएगा, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0.85 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द वाटर,
it will come out 850 kg per meter cube. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? रो डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू, दिस इज योर एस जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो डेंसिटी क्या होगा? रो जी मल्टीप्लाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, रो डब्ल्यू मल्टीप्लाई स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है. डायनेमिक विस्कोसिटी व्यू दिया हुआ है 0.3 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है. डी वाई कितना होगा? डी वाई देखते हैं, डी वाई कितना होगा. सो ये प्लेट की थिकनेस भी दिया हुआ है. पहले वाले केस में, इस केस में क्या था? प्लेट की थिकनेस नहीं दिया. वी आर एज्यूमिंग दैट द थिकनेस क्या था? थिकनेस वाज 0, बट हियर इट इज गिवन थिकनेस 24, सॉरी थिकनेस कितना दिया हुआ है? 6 मिलीमीटर दिया हुआ है. तो ये डिस्टेंस कितना, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? सो कैसे फाइंड करेंगे? सो डी वाई विल बी 24, 24 में से 6 थिकनेस माइनस किया एंड डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. या तो फिर 24 का हाफ कर लो एंड देन डिवाइड करो, सेंटर से डिवाइड कर दो. ठीक है. सो 24 minus 6 and divided by 4. So 24, this will be 18 divided by 2. So this will be 9 millimeter. And 9 into 10 power minus 3 मीटर. ठीक है. अब कैलकुलेट करें शियर फोर्स कितना लगेगा. सो लेट अस कैलकुलेट शियर फोर्स ऑन द लेफ्ट सरफेस. लेफ्ट सरफेस पे कैलकुलेट करते हैं कितना लगेगा. सो व्हाट विल बी दी शियर फोर्स. ठीक है. सो FS1 कितना होगा? ताउ इंटू AS, शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस एंड सरफेस एरिया, एंड दिस विल बी म्यू टाइम्स ऑफ DU ओवर DY एंड मल्टीप्लाई AS. ठीक है. म्यू इंटू DY. सो म्यू कितना है? विस्कोसिटी 0.3, विस्कोसिटी 0.3. DU वेलोसिटी दिया हुआ है, सो दिस इज V दिया हुआ है 0.15. सो DU कितना हो जाएगा? DU हो जाएगा 0.15. DY 9 इंटू 10 पावर माइनस 3. एरिया दिया हुआ है. सो ये प्लेट की डायमेंशन दी हुई है, तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी एरिया. सो एरिया कितना हो जाएगा? लेट मी राइट हियर. एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बी 1.25 इंटू 1.25, दिस मच mm स्क्वायर. ठीक है. ऑल आर इन mm, सो 1.25 इंटू 1.25. सो दिस विल कम आउट 1.25 इंटू 1.25 एंड इंटू 10 पावर माइनस 6. ठीक है. अगर इसको मिलीमीटर में, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 1.25 एंड 10 पावर माइनस 6. सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. क्या आएगा? 9 1.25 1.25 पॉइंट, इसको सिंप्लीफाई कर लेना एंड यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली, it will come out 78.125 Newton. So this will be no, let me check. ये मीटर में दिया है, सॉरी दिस इज गिवन इन दिया, तभी बोलो इतना ज़्यादा कम क्यों आ रहा है. सो 10.6 नहीं आएगा, दिस विल नॉट बी कम हियर. 1.25 एंड 1.25, दिस इज योर इन मीटर स्क्वायर, दिस इज योर इन मीटर स्क्वायर. एरिया इसमें दिया है 1.25 मीटर, 1.25, सो दिस विल 1.25 1.25. दिस इज डायरेक्टली ये मीटर में ही है, सो 78.125. ठीक है. तो राइट साइड में देख लेते हैं. सो व्हाट विल बी शियर फोर्स, सेम शियर फोर्स ऑन एक्ट करेगा ऑन द राइट साइड. सो शियर फोर्स ऑन द राइट साइड कितना आ जाएगा? फॉर राइट साइड अगेन सेम 78.125 Newton. So the total shear force
shear force Fs, that will be Fs1 plus Fs2 or 2 times of Fs1. So it will be 2 into 78.125. So 2 into 1 point, so 0.5, 5.25, not 0.25, 0.25 and 2 6 2 8 जा 16, 2 7 जा 156 न्यूटन. ठीक है. सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू शियर. ठीक है, इतना समझ में आया क्या किया मैंने. वी हैव कैलकुलेट डी वाई कैलकुलेट कर लिया, डी वी कैलकुलेट कर लिया, यू दिया हुआ है तो डी यू कैलकुलेट कर लिया. शियर फोर्स टाउ इंटू सरफेस एरिया, टाउ कितना होगा म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई मल्टीप्लाई सरफेस एरिया, दैट विल गिव यू शियर फोर्स. इट इज प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द प्लेट, सो Fs1 and Fs2 will be equal. So हमने कैलकुलेट कर लिया Fs1 and Fs2 and this is the net shear force. हमको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, हमको फाइंड करना है डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड. कितना फोर्स चाहिए इस प्लेट को मूव कराने के लिए विथ वेलोसिटी 0.25. अगर आप देखो आप इसमें क्या होगा, दिस प्लेट इज कंप्लीटली, ये पूरा फ्लूइड के अंदर है. सो जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं, सो ये दिस प्लेट इट इज इस प्लेट पे क्या लगेगा, देयर विल बी अ बायंसी फोर्स लगेगा. क्यों लगेगा, बिकॉज इट इज इमर्स इनटू द लिक्विड. इसको लिक्विड में डाला है तो इस प्लेट ने लिक्विड को, जहाँ पे लिक्विड होना चाहिए उसकी जगह पे क्या है, प्लेट है. सो इस प्लेट ने कुछ पोर्शन लिक्विड का डिस्प्लेस किया हुआ है. सो उस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के वेट के बराबर जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर देयर विल बी द बायंसी फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्लेट. ठीक है, बायंसी फोर्स क्यों लगेगा, बिकॉज ऑफ द लिक्विड. इसको हमने, सो लेट अस कैलकुलेट बायंसी फोर्स. सो बायंसी फोर्स कितना होगा, सो बायंसी फोर्स होगा weight of the liquid displaced by the plate. प्लेट ने जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, प्लेट ने जितना वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस किया है, उस वॉल्यूम का वेट वो हमको फाइंड करना है. ठीक है, क्या बोल रहा हूं, प्लेट ने जितना वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस किया है, उस वॉल्यूम का वेट हम फाइंड कर लेंगे. सो दैट विल बी आवर बायंसी फोर्स. तो वो कितना होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट. ये वेट कितना होगा, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड. ठीक है, वेट के लिए कैसे निकालेंगे, वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट निकालेंगे हम स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम. ठीक है, अगर हमको पता चल जाए कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, तो वॉल्यूम में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, दैट विल गिव यू वेट. ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट एंड मल्टीप्लाई वॉल्यूम डिस्प्लेस, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायंसी फोर्स. तो स्पेसिफिक वेट कितना होगा, सो दैट विल बी रो टाइम्स ऑफ जी. स्पेसिफिक वेट कितना होगा, रो टाइम्स ऑफ जी. एंड कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, सो जितना वॉल्यूम प्लेट का होगा, इस प्लेट ने कितना वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस किया, जितना वॉल्यूम इस प्लेट का है उतना ही फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया. सो इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द प्लेट.
so this quantity will be volume of the plate. ठीक है, बस कैलकुलेट कर लो डेंसिटी कितना दिया हुआ है फ्लूइड का. सो डेंसिटी हमने निकाला था, दिस इज डेंसिटी 850. सो दिस इज 850 इंटू 9.81. वॉल्यूम है 1.25 इंटू 1.25 एंड 6 मिलीमीटर, तो 6 इंटू 10⁻³ ठीक है. ये डायमेंशन दिया हुआ 1.25 और 6 मिलीमीटर. सो एंड इट विल कैलकुलेट कर लो इसको. सो इट विल कम आउट 78.17 न्यूटन. ठीक है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं. एक तो बायंसी का भी लग रहा है. बायंसी, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में डिप करते हैं तो क्या होता है, जितना वॉल्यूम उसका डिप होता है उस वॉल्यूम के डिस्प्लेस्ड, जितना वॉल्यूम उसका डिप हुआ है उतना वॉल्यूम उसने फ्लूइड डिस्प्लेस किया है. सो उस फ्लूइड की डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का वेट जितना होगा, सो दैट विल बी योर बायंसी फोर्स. तो हमने यहाँ पे बायंसी फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया. सो दिस इज बायंसी फोर्स. ये बायंसी फोर्स आया. कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द प्लेट. और प्लेट ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, जितना वॉल्यूम उसका होगा. प्लेट का पूरा ही डिप है, ये पूरा वॉल्यूम में डिप ही है, तो जितना वॉल्यूम इस प्लेट का होगा, सो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. और उसके लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वॉल्यूम डिस्प्लेस. सो दिस इज द बायंसी फोर्स. अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या क्या होगा इस पे. ठीक है, अब फिर से आते हैं. ये प्लेट है अगर, सो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे. सो लेट मी, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे. ऑन दिस साइड क्या होगा, प्लेट ऊपर मूव कर रही है, सो शियर स्ट्रेस दोनों साइड में सरफेस पे नीचे लगेगा, Fs1 Fs2. ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की वजह से देयर विल बी फोर्स ऑन अप साइड. ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, दिस इज बायंसी फोर्स. ठीक है, दिस इज बायंसी फोर्स ऊपर की साइड लगा, शियर फोर्स नीचे की साइड लगा. और कोई फोर्स होगा, और कोई फोर्स होगा, बताओ और कोई फोर्स होगा. यस, देयर विल बी वेट ऑफ द प्लेट. ये प्लेट का वेट होगा, दैट विल एक्ट डाउन साइड. वेट ऑफ द प्लेट हमने ऐड कर लिया Fs1 प्लस Fs2. ये हमने कैलकुलेट कर लिया Fs. ठीक है, सो बोथ आर एक्टिंग, ये दो नीचे की साइड लग रहे हैं. वेट acting on downside, buoyancy force it is acting upside. और कोई फोर्स, और कोई फोर्स. सो व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स ऊपर की साइड में चाहिए फ्लूइड को मूव करने के लिए. लेट दिस इज F. हमने कितना फोर्स लगा रखा है, दिस इज योर F रिक्वायर्ड. ये हमको कैलकुलेट करना है कितना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, सो दैट इट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. So constant velocity, again acceleration will be 0. Acceleration will be 0, that means F net force on this system will be 0. और net force 0 होने का मतलब ऊपर के फोर्सेस एक साइड, नीचे के फोर्सेस एक साइड इक्वेट कर दो. ठीक है, और दोनों का वेक्टर सम क्या कर लो, सिग्मा F net क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 0. सो ठीक है, ऑल राइट. सो लिखिए फोर्सेस क्या क्या लगेगा. लेट दिस, इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेते हैं, दिस अपसाइड को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेते हैं. सो व्हाट विल बी F ऊपर की साइड लग रहा है, प्लस और ऊपर की साइड क्या लग रहा है, बायंसी फोर्स लग रहा है. बायंसी फोर्स ये है, बायंसी फोर्स एक्टिंग अपसाइड, माइनस Fs माइनस क्यों लिया, बिकॉज इट इज एक्टिंग डाउन साइड, माइनस W इज इक्वल टू 0. ठीक है, 4 फोर्सेस
कौन कौन से, रिक्वायर्ड फोर्स, बायोंसी फोर्स, शियर फोर्स एंड वेट, हमने सब कैलकुलेट किया हुआ। वेट ऑफ द प्लेट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ द प्लेट दिस इज गिवन टू यू 90 न्यूटन दिया हुआ है। सो वेट ऑफ द प्लेट ये कितना है, दिस इज 90 न्यूटन, 90, ठीक है। एफ एस ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, व्हाट इज एफ एस, 156.25, एफ एस है 156.25। बायोंसी फोर्स कितना है, सो बायोंसी फोर्स है 78 पॉइंट, ये आया 78.15 एंड दिस इज योर एफ। सो एफ प्लस इस माइनस माइनस इक्वल टू 0, बस इक्वेट कर लो। सो एफ प्लस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो एफ इक्वल टू 156.25 प्लस 90.25 माइनस 78.15, so it will come out 78, so it will come out 156.25, इसमें 90 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.85 एंड 11, ठीक है, ऑलराइट 11, हाँ। सो दिस विल बी एफ, एफ विल बी कम आउट 168.08, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, 85, 85, 9, 10, अच्छा 15 आना चाहिए ना, 9 में से 1 बराबर है 5, 10, so it will come out 16.08 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। नहीं कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे कैलकुलेशन में, 90 माइनस ये कितना होगा 5, और ये 9 में 8, 1 बराबर या 8, 5, 10, हाँ दिस विल बी, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 एंड 5, 10, 11, हाँ 16 पॉइंट बराबर। सो दिस विल बी योर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी, so this will be your answer, ठीक है। किस तरह से कैलकुलेट किया, ये रहा शियर फोर्स, लेफ्ट साइड में कैलकुलेट किया, सेंट्रली प्लेस किया हुआ है, सो दोनों साइड शियर फोर्स इक्वल होंगे, सो टोटल शियर फोर्स विल बी Fs1 प्लस Fs2, दिस इज द बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द फ्लूइड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द फ्लूइड। सो उस वेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम डिस्प्लेस एंड मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी रो जी, दिस इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द फ्लूइड एंड दिस विल बी योर टोटल बायोंसी फोर्स 77.17। एंड द फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे, सो वेट जो होगा वो नीचे की साइड लगेगा, यहाँ पे जो वेट है दिस इज वेट नीचे की साइड, बायोंसी फोर्स ऊपर की साइड, शियर फोर्स नीचे की साइड एंड द रिक्वायर्ड फोर्स ऊपर की साइड लगा रहे, क्योंकि हमको किधर मूव करना है, अप साइड। ऊपर के फोर्सेस एक साइड कर दो, नीचे के फोर्सेस एक साइड कर लो एंड यू विल गेट आंसर, ठीक है। ओ यहाँ पे 70 क्या था, ये 17 था, यहाँ पे 15 लिख दिया है। सो टेक केयर ऑफ कैलकुलेशन। सो कॉन्सेप्ट बता दिया किस तरह से इसको सॉल्व करना है। दोनों सरफेस के साइड पे शियर फोर्स लगेंगे, इस साइड भी इस साइड भी, बायोंसी फोर्स अप साइड लगेगा, ठीक है। सो यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन आधार एकेडमी, ठीक है, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर regular update, okay। So thanks for watching.